Hello and very warm welcome in today's video. Earlier I have discussed about the preparation strategies for history from prelims and mains perspective. In this video I am going to discuss about geography and environment portion in details from prelims and mains perspective. Let us first see the nature of question. Geography में जो prelims में questions आएंगे basically वो दो parts में divide हो जाएंगे. बेसिकली जो बेसिक नॉलेज फंडामेंटल क्वेश्चंस ज्योग्राफी के जो होंगे वो काफी इजी नहीं होंगे बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर है तो आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे. द फर्स्ट टाइप विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू check an aspirant's basic knowledge of the fundamental issues of geography. In the prelims, there will be no any straight question on the fundamentals or issues related to the core topic of the subject. The questions are formed in the way to test one's basic understanding of the subject, hence mugging up the topic will not help you. One must understand the concept and have a practical approach towards it. This is the key point here, how you should study. The second set of questions will be of contemporary event. Mostly questions from current affairs will be asked, where you will be asked to identify some place where they are. For example, what are the cities on Tropic of Cancers, what are the countries from Capricorn and all. Such type of questions can be asked. And secondly, about natural calamities they can ask you. फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन कहाँ फॉर्म हुआ, सुनामी कहाँ पर आई है, सुनामी का फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. द क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू प्लेस माइट बी स्लाइटली डिफिकल्ट बट इफ यू आर गुड इन एटलिस you will be able to solve it. After studying the nature of paper, let's begin the sources. These are the list of books related to geography which you are supposed to read. From 6th standard to 12th standard you have to read these NCERTs. These are new NCERT. First is social science, class 6th, the earth, our habitat. Second is social science, 7th standard NCERT, our environment. Third, social science, class 8th NCERT, resources and development. Social science, class 9th, contemporary India. Social science, class 10th, contemporary India, part 2. Class 11th, fundamentals of physical geography and India physical environment. And NCERT, class 12th, this is new one. Fundamentals of Human Geography, India, People and Economy. Along with this, you are supposed to read Atlas, Orient Black Swan and Oxford School Atlas. You need to buy both because Orient Black Swan is very good for world geography and Oxford School Atlas is very good for Indian states. Selectively, you are supposed to read GC Leong, that is Certificate Physical and Indian Geography, and selectively you can read old NCERT from 11th and 12th also. Now let's check out the year, geography and environment distribution and weightage of marks in prelims. In 2009 you will see that there were 15 questions and in environment there were 16 questions. In 2018 there was 10 question and 13 question in environment. In 2017 you will see 7 questions and 11 questions in environment. In 2016 you will see 2 questions and 3 questions in environment. In 2015 you will see in geography there are 10 questions and in environment there were 7 questions. After reviewing this you can see geography and environment both the portion are really very important and crucial for our preparation. And it plays an important role in prelims. Next, let's analyze Mains Geography paper. In 2009, there were questions from 75 marks. Geography and in environment there were 25 marks question. In 2018, there were 85 marks out of 250 marks which belong to geography and in environment there were 35 marks. In 2017, 115 marks was from geography and 25 marks from environment. In 2016 112 marks and 25 marks from environment. So
इससे हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट प्ले करता है हमारे प्रीलिम्स एंड मेंस में. लेट्स सी व्हाट इज मेन सिलेबस. Distribution of key natural resources across the world, including South Asia and Indian subcontinent. Factor responsible for the location of primary, secondary, tertiary sector industry in various parts of the world and India, including India. इस टॉपिक के अंडर आपको नेचुरल रिसोर्सेज, कहाँ पे कौन से नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड होते हैं. दूसरा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज है, सपोज आयरन और इंडस्ट्रीज या टिम्बर इंडस्ट्री, पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज, इसके बारे में आपको जानना है कि कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री है. बेसिकली कोल कहाँ फाउंड होता है, कहाँ डेयरी इंडस्ट्रीज ज्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड है, ये सारी चीजों को आपको इसमें पढ़ना होगा. सेकेंड है important geographical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc. Geographical features and their location. Changes in critical geographical features including water bodies and ice cap and in flora and fauna and the effects of such changes. Basically इसमें oceanography और सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज का फॉर्मेशन प्रोसेस आपको पढ़ना होगा, जो कि सविंदर सिंह में बहुत अच्छे से दिया हुआ है. साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, ये सारे पार्ट्स हैं इसमें. अगर इस टॉपिक को हम ब्रॉडली डिफाइन करें या डिवाइड करें तो पहला टॉपिक आता है जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, टेक्टोनिक, physical phenomena, mountain building, volcanoes, earthquake, weathering and erosion, rocks and landforms. इसके फॉर्मेशन प्रोसेस आपको जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ने होंगे, जो कि मेंस का टॉपिक है. क्लाइमेटोलॉजी का प्रोसेस है एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जेट स्ट्रीम, प्रेशर्स एंड विंड सिस्टम, एयर मास फ्रंट, साइक्लोन्स, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ज्योग्राफिकल फिनोमेना, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. ओशनोग्राफी का पार्ट है ओशन रिलीफ, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ओशन करेंट्स, सैलिनिटी, कोरल ब्लीचिंग, मराइन पॉल्यूशन, सी लेवल चेंज, यूएन लॉज. देन बायोज्योग्राफी, सॉइल प्रोफाइल, डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन, बायोटिक रीजन, डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, एनवायरमेंट, पोल्यूशन. ये मैंने साइलेंट फीचर्स को और डिवाइड करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया है. आप इसके नोट्स बना लेना और इसी चीज को एक एक करके टॉपिक्स उठा के इसके नोट्स बना के इसको पढ़ना. फॉर मेंस यू आर सपोज टू रीड दीज मैनी बुक्स. NCERTs फ्रॉम 6 to 12 एज सेम एज प्रीलिम्स. GC लियोंग 12th. कुल्हर एंड कुल्हर ये एडिशनल बुक है, ये आपको इसमें से सिलेक्टिवली रीड करनी होगी. सविंदर सिंह स्पेशली ज्योग्राफिकल फीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. एटलिस्ट एंड ओरिएंट ब्लैक स्वॉन, ये बुक. अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है मेंस के पर्सपेक्टिव से, ये देखते हैं. अ थरो नॉलेज ऑफ एटलस आपको प्रीलिम्स के लिए भी चाहिए. इवन फॉर मेंस ऑल्सो यू विल नीड द सेम थिंग. डेमोग्राफिक, डायरेक्शंस, ओशंस, कॉन्टिनेंट, इस सब के बारे में आपको थोरो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग जियोमॉर्फोलॉजी, बेसिकली सारे अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड जो भी स्टडी होगी वो उसे जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, जिसमें अर्थ वेव, शैडो जोन, वोल्केनिक इरप्शंस, कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 3 बार रिपीट हो चुका है पेपर में. मराइन लैंडफॉर्म्स एंड कोस्टल लाइन्स. आपको सोलर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए. क्लाइमेटिक रीजन्स, मेडिटेरेनियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर. रीजन्स दैट लीड टू वेरिएशन इन क्लाइमेट, फिजिकल डिविजन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस, अर्थ, एटमॉस्फेयर, एयर मास, फ्रंट, साइक्लोन्स, प्रेसिपिटेशन एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ये आपको क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ना होगा. ओशनोग्राफी में इंट्रोडक्शन पढ़ना है. टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, ओशन करेंट्स, कोरल रीफ, टाइड्स. ये मैंने इसको माइन्यूटली डिवाइड कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो. क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया,
Indian monsoon. Physical division of India, soil profile of India, India's weather, rainfall and crop, द मेजर रिवर सिस्टम, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी. मिनरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज. जब आप पढ़ेंगे तो हमेशा ज्योग्राफी को अपने साथ में एटलीस्ट के साथ में पढ़ना होता है. और हमेशा किसी भी कंसेप्ट को पढ़ते हुए ये ध्यान रखना है वाइज एंड हाउस, ये क्यों हुआ है और उसका इफेक्ट कैसे हुआ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी को समझने के लिए. It is obvious that you need to practice that topic extremely well. Make notes, revise and writing practice is must. Let's move forward. ये देखते हैं एनवायरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, उसके रिसोर्सेज क्या हैं. फॉर स्टैटिक पोर्शन रेफर टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ज्योग्राफी 6th to 12th. इंडिया ईयर बुक का चैप्टर है एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, ये आपको पढ़ना है. द हिंदू न्यूज़पेपर के जितने भी करंट रिलेटेड आते हैं टॉपिक्स, क्लाइमेट चेंज, कोई इंटरनेशनल समिट हुई है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आते हैं वो आपको करंट से रेफर करने होंगे. यू कैन रेफर साइंस रिपोर्टर मैगजीन और डाउन टू अर्थ मैगजीन, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. शंकर आईएएस एनवायरमेंट, एनुअल फॉरेस्ट सर्वे आप पढ़िए. एनसीईआरटी साइंस की 9th and 10th की ज्योग्राफी की वो एनवायरमेंट पे भी फोकस करेगी. बायोलॉजी की एनसीईआरटी 12th की you have to focus last 4 chapters which are basically for environment and ecology. If you go through that book you will be able to understand each and every definition that is important for ecology and environment. Lastly आप environment and ecology के लिए पीडी शर्मा को रेफर कर सकते हैं. अगर हम बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट को ब्रॉडली डिवाइड करते हैं तो ये सब टॉपिक्स निकल के आते हैं, जिसमें बायोडाइवर्सिटी में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, रेड बुक डाटा के बारे में पढ़ना होगा. General topic from environment ecology, terms such as ecotone, ecosystem, effects of environmental degradation, food chain, etc. Pollution, acid rain, smoke, greenhouse gases, algal bloom, ozone layer. ये डिवाइड होते हैं पोल्यूशन के टॉपिक में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रिन्यूएबल एनर्जी, बायोफर्टिलाइजर, बायोपेस्टिसाइड, बायोमास, गैसिफिकेशन, ये आएंगे टॉपिक्स. कंजर्वेशन में कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नेशनल पार्क्स, वेटलैंड्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स. क्लाइमेट चेंज के टॉपिक्स हैं क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्लाइमेट चेंज समिट्स जो कि उस साल हेल्ड हुई होगी वो. इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, वेस्टर्न घाट्स एंड हिमालय. लॉज, रेगुलेटरी बॉडीज एंड पॉलिसीज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, Environment Protection Act, National Biodiversity Authority, Forest Right Act, Protocol and summits like Nagoya Protocol, Cartagena Protocol and Lima Conference, etc. UNEP, FAO, UNESCO, etc. इसके बारे में पढ़ना होगा. Ramsar Convention, Montreal's Record, the 3 Rio Conventions, Convention on Biological Diversity, United Nations Framework Conventions on Climate Change, UNFCCC, and United Nations Conventions to Combat Desertification. From the 1992 Earth Summit, Carbon Trading and Leakage Issue, Kyoto Mechanism, Emission Trading, etc. ये मैंने सब्जेक्ट को ब्रॉडली डिवाइड कर दिया है. आप इसको एक करके आप इसके नोट्स बना के आप इसको पढ़िए. आपको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड इसी में से क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके बाहर के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स. होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड पीडीएफ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.